हुआ है जाके? अ, ठीक है। Actually, I just want to analyze the voice quality, each and everything, where the things are getting wrong. Okay, इसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए भी, बिकॉज अभी कुछ दिनों की बात है। आई एम गोइंग टू चेंज माई लैपटॉप, बिकॉज ये लैपटॉप की उम्र हो गई अभी। सो एक्चुअली आई हैव नॉट डिसाइडेड विच लैपटॉप आई शुड बाय। Actually, I have already visited 2 or 3 stores, and ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट मैं काफ़ी बार सर्व कर चुका हूँ, बट आई हैव नॉट डिसाइडेड टिल नाउ. Okay, if you people have a good recommendation, then you can suggest me also. Okay, I will appreciate. Okay, so um, actually, I was just checking the lecture in final year before you peoples only, from 2 to 3. Okay, so 2 to 3 के lecture में I was checking mobile communication and computing. The prerequisite for mobile communication and computing is computer networks only. मतलब वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क आना चाहिए. Okay, and you can say computer network is the basic for that particular subject, that is MCC. तो CN और MCC, तो CN is in 5th semester and MCC is in 7th semester. ठीक है, तो दोनों का रिलेशन काफी स्ट्रांग है. और वॉट एवर यू विल लर्न इन द CN, तो वो आपका सब किसमें जाएगा? MCC में एडवांस बन के आएगा. ठीक है, मतलब एडवांस पार्ट बन के आएगा. तो लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस. क्या आप लोग पढ़ने वाले हो बेसिकली? आज हम लोग उसी बारे में डिस्कशन करेंगे कि व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड हाउ द थिंग्स विल बी इन दिस सेमेस्टर. ओके, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द स्क्रीन फॉर CN. Okay, you people are the first batch who is uh, having a new syllabus in each and every semester. When you people were in the first year, तो आपको दोनों सेमेस्टर में आपको नया सिलेबस मिला, मतलब C19 स्कीम वाला. सेकेंड ईयर में आए तो भी आपको नया सिलेबस मिला. एंड व्हेन यू केम इनटू द थर्ड ईयर, तो आपके लिए नया सिलेबस आ चुका है. ठीक है, सो द सिलेबस थोड़ा स्लाइटली चेंज हुआ है. आई वाज देयर इन द सिलेबस कमेटी मीटिंग. सो कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस मैं आपको पहले दिखा दूं. इसको क्लोज कर देता हूँ. So this is the computer network का syllabus. Okay, every year we used to have 4 lectures in a week. We used to have 4 lectures in a week, but right now in the C19 scheme we have only 3 lectures in a week. Okay, तो यहाँ पर रहेगा अभी कहीं तो यहाँ पे नहीं है. चलो ठीक है, sorry. So we have 3 lectures in a week. Uh, these are the course outcome, as I have already explained you in the previous semester also, that we used to have course outcome. Okay, it means that after completion of these syllabus or these content, you will be able to learn the different course outcome. Okay, so they have these course outcomes have been given as around 5 course outcomes they have given. So these course outcome, all these course outcome will cover. एक second. Okay, sorry. तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर थे. Okay, so these are the 5 course outcome which is there, but I'm going to reconstruct these course outcome, because these are the course outcome which has been given by Mumbai University, and I'm going to change it and I will shoot it on the WhatsApp group. Then you can have your course outcomes. Okay, so coming to the content. Okay, directly coming to the content. This is the watermark of draft copy. So ignore it. This is the real copy. Sorry.
We have total six chapters. You can see total six chapters are there. Okay, and out of these six chapters, the first is about the networking. Okay, we'll learn about the basics of networking, like सर introduction to the इसीलिए काट की क्या हुआ. Okay, okay, one second, one second. Actually, I don't know स्क्रीन what is रुकी हुई the. है आपकी. हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट. Actually, I'm getting one issue. There's you lost your network connection. Trying to reconnect. Actually, I'm getting this issue all the time. Why this is happening, I don't know. But when I was checking final year's lecture now, so I was the same issue was being percolated every time. इंटरनेट इशू है सर। नहीं नहीं, इंटरनेट इशू तो है, सर लेकिन वही चीज देखो. अब हो मैं सके ना तो अगर इंटरनेट से कनेक्ट कर लो. नहीं नहीं, आप बात सुनो पहले. क्योंकि द सेम टू द सेम वाईफाई राउटर में कनेक्ट हूँ मेरे मोबाइल से, और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम गिविंग माई वॉइस, दैट इज माई ऑडियो फ्रॉम माई मोबाइल, एंड माई वीडियो फ्रॉम माई वेबकैम, दैट इज फ्रॉम माई लैपटॉप. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लैपटॉप में बहुत इश्यूज आ गए हैं. और कभी नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, कभी डिसकनेक्ट हो रहा है, कभी चार्जिंग कनेक्ट हो रहा है, डिसकनेक्ट हो रहा है. सो लॉट ऑफ दिस इश्यूज इट इज गिविंग. सो हो सकता है कि इसकी इसकी वजह से आ रहा हूँ बिकॉज मैं सेम वाईफाई राउटर से कनेक्टेड हूँ मेरे. मैं सेम वाईफाई राउटर से कनेक्टेड हूँ मेरे मोबाइल से भी, एंड आई एम इजीली टॉकिंग टू यू पीपल बिकॉज मैं भी अपने मोबाइल से ऑडियो दे रहा हूँ. तो उससे प्रॉपरली हो रहा है, लेकिन वही वाईफाई राउटर से मैं कनेक्टेड हूँ मेरे लैपटॉप से, लेकिन मेरा लैपटॉप सही फंक्शन नहीं कर रहा है एक्चुअली. सो मे बी एक वहां का इश्यू हो सकता है. ओके, आई थिंक वापस आ गए हम लोग. वापस से मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस से. ओके, सो इन द फर्स्ट मॉड्यूल मैं जैसे ये फर्स्ट लेक्चर एक्चुअली इसमें इन्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग जो बेसिक्स है वो देख ले, और जो एक्चुअली जो चैप्टर्स है उनको हम लोग गो थ्रू कर ले कि व्हाट आर द डिफरेंट चैप्टर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स एंड द सब टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ओके, तो भले ही एक लेक्चर हमारा जाए इसमें, लेकिन एटलीस्ट हम लोग को थोड़ा सा टॉपिक से अवेयरनेस आ जाती है. द टेक्स्ट बुक्स वी आर गोइंग टू रेफर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो, एंड व्हाट विल बी द असेसमेंट प्रोसीजर, एंड असेसमेंट कैसा होगा यहाँ पर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये दोनों चीज. ओके, वन मोर थिंग आई विल ऐड इन योर प्रैक्टिकल. वो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल में ही हो पाएंगे आपके, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा. चलो ठीक है. So these are the course outcome which are not really I'm going to I will suggest you to take. देखो एक कोर्स हम आपको इम्पोर्टेंट इसके लिए भी है कि एट द कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक यू कैन इजीली रेट यूर सेल्फ, बिकॉज ये चीज हमारी होती है इसके अंदर भी. कोर्स एग्जिट सर्वे में यू हैव सीन दोस कोर्स एग्जिट सर्वे का फॉर्म विच हैज बीन पर्क्यूलेटेड एट एवरी सेमेस्टर एंड पे आपको देते हैं, और आपको उसमें अपने अपने आप को रेट करना होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट वन, this is the second one. Explore different design issues at data link layer. So this is the course outcome. Now, how expertise you have in this particular topic? That is, have you got the design issues of the data link layer? अगर आपको वो अच्छे से समझे तो आप अपने आप को रेट करेंगे. ओके, हाई, हाई मीडियम लो, या फिर 1 2 3. तो 1 मीन्स लो, 2 मीन्स मीडियम, एंड 3 मीन्स हाई. सो इस तरीके से आपको कोर्स एग्जिट सर्वे में अपने आप को रेट करना होता है. ठीक है, सो इसका भी हम लोग कोर्स एग्जिट सर्वे सेमेस्टर एंड पर लेंगे. ओके, देन यू कैन रेट योर सेल्फ के हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड एंड हाउ मच यू हैव गॉट एंड हाउ मच यू हैव collected from that particular topic. Okay, this is the first chapter.
introduction to networking, which has all the basics of networking, like what is computer network, what are the application, and what are the network software and hardware. Okay, hardware components we can say. ये actually ड्राफ्ट कॉपी लिखा हुआ है ना, इस वजह से दिख नहीं रहा है, तो अलग से भी मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं. Interconnection networking devices. Okay, what are the different devices, okay, which are used in the networking, like you have hub, switches, router, modem, and you have bridges, you have gateway and all that. Yes, video goes off. ये बार बार हो रहा है एक्चुअली. ये एक्चुअली बार बार हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट हो रहा है. एक काम करता हूँ मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ. I don't have Ethernet connection right now. I don't have cable right now to connect my laptop with this particular Wi-Fi router. तो वो है नहीं, इसकी वजह से नहीं कर सकते. अगर मेरे पास केबल होता तो शायद मैं वो कर भी लेता. एक चीज पॉसिबल है जो आपने शायद ध्यान नहीं दिया. एक देखो, ये चीज आप में से सजेशन, आप में से कितने लोग सजेशन करेंगे देखना. I'm getting issues in my laptop. Okay, means it means that okay, maybe there's a problem with my network card. Okay, my network card is not functioning properly. Okay, my NIC, that is I call it as a network internet card, ऐसा कुछ तो होता है, तो मैं भी भूल गया. NIC basically बोलते हैं, which is also called as Ethernet card, which is also called as a LAN card. Okay, तो ये जो आपका ईथरनेट कार्ड है, या जिसको बोलते हैं आप लोग लैन कार्ड बोलते हैं, सो दिस लैन कार्ड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. सो मे बी हो सकता है कि माय लैपटॉप इज कनेक्टिंग डिस्कनेक्टिंग. द सेम प्रॉब्लम आई एम नॉट गेटिंग ऑन माय mobile. Okay, because my mobile is connected with the same Wi-Fi. My mobile is connected with the same Wi-Fi, but I'm not getting that issue in my mobile, but I'm getting the issue in my laptop. It means that this is the diagnosis you can do. Try closing other tabs. I don't think so. कुछ ज्यादा तो है नहीं यहाँ पर. कुछ मेल टैब्स ओपन है और कुछ ड्राइव्स ओपन है बस, और कुछ नहीं. मे बी आई टेक इन अ, चलो मैं इसको एक अलग इसमें ले लेता हूँ, एक अलग टैब में ले लिया हूँ. चलो. ओके. वो इशू में मैं ज्यादा ध्यान एक्चुअली इसलिए भी दे रहा हूँ कि बिकॉज अभी मुझे दूसरा ही लेना है, तो इसके लिए मैं ज्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ. चलो अभी देखते हैं. मैंने एक्चुअली जो बैकग्राउंड था, बिकॉज जब मैंने बैकग्राउंड चेंज, बिकॉज इन गूगल मीट वी हैव एन ऑप्शन दैट वी कैन चेंज द बैकग्राउंड. अभी मेरे पीछे की वॉल दिख रही है, सो मैंने इसको चेंज करके पीछे एक बैकग्राउंड सेट कर लिया था. तो इट वॉज गिविंग वन इंफॉर्मेशन लाइक, ऐसा बैकग्राउंड सेट करेंगे सो इट विल लैग सम, इट इट विल क्वाइट, इट विल लैग. ओके, तो वो मैंने थोड़ा सा हटा दिया हूँ अभी. बैकग्राउंड कुछ नहीं है, पीछे प्लेन है, ठीक है. सो मे बी अब वो इशू ना आए या नहीं आना चाहिए, देखते हैं. तो आई ऑलरेडी प्रेजेंटेड. लेट अस सी. So we'll be learning about the different networking devices. Okay, so networking devices, then network topologies, then protocol hierarchies, then design issues of the layers, and then connection oriented and connection less service. Then afterward we have reference model like OSI reference model and TCP/IP model. Uh, so this particular chapter has been divided into two sections. One is having very basic knowledge about the networking, their application, what are the different networking devices, what are the networking topologies, and what are the protocol hierarchies. Okay, what are the different design issues while we are connecting to the different layers. Okay, what is connection oriented service, what is connection less service. All these basic information we have added into the 1.1.
And in 1.2 we have one model, we have not one model, these are, we have two model, that is these models are called as the reference model. Okay, these are the reference model, and these are hypothetical models which are used in order to understand the transaction in the networks. Okay, so one is the OSI reference model, that is open system interconnection reference model, and the second one is TCP/IP reference model. Okay, तो ये सारा हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा हम लोग को खींच कर लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज ओनली 4 hours हैव बीन अलॉटेड फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मॉड्यूल नंबर 2। यू कैन सी बहुत ही शॉर्ट मॉड्यूल रखा है, ओनली 3 hours के लिए। एक्चुअली इसको थोड़ा अभी कम किया है हम लोगों ने, थोड़ा इसको हम लोगों ने कम किया है, मतलब हम लोगों ने बोले तो सिलेबस रिवीजन कमेटी ने इसको कम किया, बिकॉज पहले हम लोग को हफ्ते में 4 hours मिलते थे। राइट नाउ वी आर हैविंग ओनली 3 hours। ओके, 3 hours अ वीक। ओके, तो अब उस हिसाब से 13 3 हम लोग को टोटल मिलते हैं 13। यू ऑल्सो रिमेम्बर, ठीक है, हम लोग को पूरे सेमेस्टर में 13 hours 13 वीक्स मिलते हैं। सो 13 3 आर 39। ओके, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे आवर्स, 39 हो जाएंगे। ठीक है, तो 39 आवर्स हम लोग को ये कवर करना होता है। पहले हम लोग को ज्यादा मिलते थे, पहले 14 आवर्स मिलते थे, मतलब 14 वीक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 लेक्चर्स। ओके, सॉरी 14 13 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो पहले 52 लेक्चर्स मिलते थे, अभी सिर्फ 39 लेक्चर्स मिलेंगे। सो 39 52 काफी डिफरेंस है, और इसके लिए हम लोग को सिलेबस कम करना पड़ा। तो सिलेबस इसमें से भी कम किया है, सेकंड चैप्टर में से भी कम किया है। कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस इज द वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड, और वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है कि आपकी कौन सी कम्युनिकेशन किस बैंड में होता है। जैसे आपका ब्लूटूथ कम्युनिकेशन कौन से बैंड में होता है, आपका इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कौन से बैंड में होता है, और आपका वाईफाई कम्युनिकेशन कौन से बैंड में होता है। सो वी हैव सेपरेटेड, ओके, these are called as low frequency, high frequency, medium frequency, very high frequency, very low frequency, medium frequency. So these have been divided into in such a manner. Okay, so that is nothing but the frequency band. अगेन आई एम गेटिंग इशू, यू कैन सी वीडियो आपका चला, मतलब मेरा वीडियो चला गया होगा, यू लॉस योर नेटवर्क कनेक्शन। कनेक्ट होके अब दोबारा आया है। ओके, दोबारा आके अभी दोबारा रिकनेक्ट हुआ है। नाउ यू कैन सी, सो दिस इज दिस इज गोइंग ऑन। कभी सुबह से मैं ले रहा हूँ तो सुबह से प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट सेमेस्टर में इशू नहीं था, लेकिन अब ये हो रहा है। सो ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, सून विल बी हैविंग अ सोल्यूशन। ओके, तो the second point, that is 2.2, which has guided transmission media, that is twisted pair cable, coaxial cable, and fiber optic cable. These are the guided transmission media. Basically, it was like transmission media. Then it has two categories. One is the guided transmission media. Second was non-guided transmission media. जिसको हम लोग बोलते थे unguided transmission media. In this particular unguided transmission media, we have a microwave. We have satellite communication, and we have other different मतलब के different types of communication were there. So unguided transmission media हम लोग को नहीं है, only we have guided transmission media. Sorry. Okay, तो only 3 lectures have been given. I think एक लेक्चर में ये आपका हो जाएगा और 2 लेक्चर में ये हो जाएंगे। तो ऐसे आपके 2 लेक्चर्स तो पहले ही, मतलब 2 चैप्टर्स आपके आराम से खत्म हो सकते हैं। Coming to the third chapter, which is about the data link layer. Okay, and you will see ये जितने चैप्टर्स के नाम है ये सब OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर के नाम है। ओके, द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल इज फिजिकल लेयर। द सेकंड लेयर ऑफ OSI reference model is data link layer. The third layer of OSI reference model is network layer. Physical layer, data link layer, network layer, उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो इन दिस वे वी हैव 7 layers in OSI reference model, which is very important topic in your computer networks. अगर कोई नेटवर्क का बनता है और उसको OSI रेफरेंस मॉडल नहीं पता, मतलब उसको कुछ नहीं पता।
ठीक है, तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, so the name of the chapter has been given based on the layer of this OSI reference model which we will be learning in the first chapter। देखो यहाँ पर आपने देखा रेफरेंस मॉडल्स। ओके, यहाँ पर आपका OSI रेफरेंस मॉडल रहेगा और TCP IP रेफरेंस मॉडल रहेगा। तो हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल पढ़े। TCP IP रेफरेंस मॉडल के अंदर कुछ लेयर्स को कंबाइन किया गया है, फंक्शंस उनके कंबाइन किए गए हैं और उसका नाम दिया गया है TCP IP रेफरेंस मॉडल। लेकिन यहाँ पर जो हमारा OSI रेफरेंस मॉडल है, इट इज द बेस मॉडल। ओके, सो थर्ड आपका जो है वो है थर्ड लेयर, यानी कि डेटा लिंक लेयर। मतलब वो आपका थर्ड चैप्टर है, लेकिन आपका सेकेंड लेयर आती है, दैट इज डेटा लिंक लेयर। सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग लाइक आपका डिजाइन इश्यूज है, मतलब आपके डिफरेंट डिजाइन इश्यूज ऑफ द डेटा लिंक लेयर, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसके कुछ सर्विसेज हैं। ओके, देन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, how to find the error, how to detect the error and how to correct the errors in the packet। ओके, हमने कुछ पैकेट सेंड किए, वो पैकेट में कुछ अगर एरर है उसको करेक्ट करना है, तो वी हैव सम मैकेनिज्म लाइक हैमिंग कोड है, CRC है, चेकसम है। ओके, and we have the different protocols also like stop and wait protocol, sliding window protocol, go back and selective repeat। तो ये सारे हमारे पास protocols हैं। So that will be learning in the 3.1। That in 3.2 we have medium access control sublayer। they want to show like आपके पास में एक मीडियम है जिसमें से सारे पैकेट आपके जाने वाले हैं। अगर दो पैकेट अगर कोलाइड होते हैं, दो पैकेट अगर आपके टकराते हैं, तो क्या होगा, आपका वो पैकेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो पैकेट लॉस से अगर हमको बचाना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक हाईवे है, उसमें दो लेन्स हैं। ठीक है, यू हैव हाईवे एंड यू हैव टू लेन्स इन दैट पर्टिकुलर, जो भी आपका एक साइड में जाने वाला जो लेन है। अब उसमें से दो गाड़ी जाएंगी आपकी, अगर तीन जाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक गाड़ी चल रही है, दूसरी गाड़ी चल रही है, अगर एक गाड़ी उसके लेन में आने की कोशिश करेंगी, देन व्हाट विल हैपन, अगेन एक्सीडेंट होगा, कोलिशन होगा, क्या होगा, नुकसान होगा। ओके, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी आपके पैकेट्स के साथ में हो सकता है। ठीक है, उसको सही करने के लिए, उस मीडियम को, उस हाईवे के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ओके, एंड दोज प्रोटोकॉल्स आर अलोहा, carrier sense multiple access, that is CSMA, CSMA CD and CSMA CA। CSMA CA तो अब इसमें इन्होंने रखा नहीं है, CSMA CD तक ही रखा है। ठीक है, so that will learn in the 3.2। coming to the fourth chapter, that is network layer। so network layer में basically network layer के design issues है। okay, then will come over here with the IP addressing। ठीक है, IP address is IP addressing is very very important topic, you have to learn it very carefully। IPv4 एड्रेसिंग, उसके अंदर एड्रेसिंग दो टाइप्स की होती है, क्लासफुल एड्रेसिंग, एक होती है क्लासलेस एड्रेसिंग। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सबनेटिंग। सबनेटिंग इज द टर्म विच इज यूज टू, देखो वापस गया अभी वीडियो, मतलब कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है, स्क्रीन हाँ दिख सर, रही आ है? रहा नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही, अब दिखी। हाँ आएंगे, दिखेंगे दिखेंगे। मैंने एक्चुअली रीजॉइन किया हूँ इसके लिए। ओके, चलो ठीक है। ओके, so fourth chapter में, in fourth chapter we'll learn about the IPv4 addressing, that is the classful addressing, classless addressing, and then we have one more concept, that is subnetting। Okay, subnetting is the one from which we can divide the network segment। एक IP एड्रेस को और मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने का नाम सबनेटिंग है। ठीक है, और मल्टीपल सबनेट को एक सबनेट में ज्वाइन करने का नाम सुपरनेटिंग। ठीक है, तो सब नेटिंग में क्या हो जाएगा, सब डिवीजन करेंगे,
और सुपर नेटिंग में सुपर करेंगे सबको, ठीक है। तो सुपर नेटिंग तो इसमें उन्होंने डाला है, लेकिन उतना उतना वो नहीं है, लेकिन सब आपका सब नेटिंग इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, 2-3 लेक्चर लग जाते हैं, 2-3 एग्जांपल के साथ मैं लूंगा, बट एक बार समझ में आए तो दूसरी बार आपने भूलना नहीं चाहिए। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। देन IPv4 प्रोटोकॉल, देन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, देन IPv6। IPv6 तो आ भी चुका है, लेकिन बहुत से लोग अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। उसके बाद में राउटिंग एल्गोरिथम्स है, वी हैव टू एल्गोरिथम लाइक आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग। दीज एल्गोरिथम बेसिकली हमको बताते हैं कि हाउ मतलब एक पैकेट को बताते हैं कि हाउ योर पैकेट्स विल ट्रैवल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई विल से यू दैट you have to reach मुंबई CST, ओके। आपको खारगर से मुंबई CST जाना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं तो आप लोग बोलेंगे सर जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। इधर यू कैन गो बाय योर बाइक, ठीक है। तो बाइक से भी अगर जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप बोलूंगा कि आप बोलेंगे सर ट्रेन से भी जा सकते हैं, तो कैसे? तो यहाँ से फिर मैं खारगर स्टेशन जाऊंगा, यहाँ से खारगर स्टेशन जाएंगे, देन खारगर स्टेशन से हम लोग ट्रेन लेंगे, और ट्रेन से फिर हम लोग मुंबई CST जाएंगे, वहां से फिर हम अपना जो भी जो डेस्टिनेशन है वहां जाएंगे। सो दिस इज वन रूल। If the trains are not running, then we have another option that we can go by the ST bus also, ठीक है। हम यहाँ के करीब में पनवेल चले जाएंगे, तो पनवेल में ST स्टैंड है, ST स्टैंड से वहां से मैं बस लूंगा, वहां से मैं चले जाऊंगा मुंबई, ओके, मुंबई चले जाऊंगा, फिर वहां उतर के मेरे डेस्टिनेशन पे जाऊँ। सो अगर मैं बात करूँ एक डेस्टिनेशन पे रीच करने की, सो आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आई कैन रीच ओवर देयर विथ मल्टीपल ऑप्शंस, ओके। तो ये जो रूट है ये मुझे कौन बताएगा? ओके, यू आर द एक्सपर्ट, यू आर टेलिंग मी दैट कि सर ऐसा जाओ, यहाँ से ट्रेन पकड़ लो, वहां से चले जाओ, वहां से चले जाओ, यहाँ चले जाओ। So you are the expert and you are telling me all these things, okay? But now for a packet who is traveling, बेचारा इतना इतने इतने घने जंगल में, इतने घने जंगल में आपका छोटा सा पैकेट ट्रैवल कर रहा है, उसको उसको बताने वाला कौन है कि आप यहाँ से उस राउटर के पास चले जाओ, उस राउटर से उस राउटर के पास चले जाओ, वहां से यहाँ से वहां, तो आप पहुंच जाओगे। तो इसको कौन बताने वाला है? तो हमारा सिस्टम बताएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को राउटिंग एल्गोरिथम्स लगते हैं, और वो राउटिंग एल्गोरिथम दो है, एक तो है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और दूसरा है लिंक स्टेट राउटिंग, ओके। देन वी हैव फ्यू प्रोटोकॉल्स लाइक ARP, RARP। हम एकदम डिटेल में जाएंगे, जैसा आपको मैं बोल रहा हूँ ना, तो वैसे ही हम लोग डिटेल में जाएंगे, घना जंगल, अकेला पैकेट, वैसे ही जाएंगे, सो डोंट टेक टेंशन, ठीक है। प्रोटोकॉल्स हमारे ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट गेटवे मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ऐसे ही है। तो ये सब आपके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। We have one more topic, that is congestion control, one of the very important topic, that is congestion control algorithms. We have two algorithms basically. The first one is open loop congestion control and second is closed loop congestion control. And for that we have two algorithms also, one is token bucket algorithm and second is leaky bucket algorithm. एक बाल्टी होती है, बाल्टी में से पानी लीकेज होता है, उसको बोलते हैं लीकी बकेट एल्गोरिथम। और एक होता है टोकन, उसमें टोकन देके एंट्री लेना होता है, उसको बोलते हैं टोकन बकेट। बहुत सिंपल है, टाइम आएगा समझेंगे हम लोग। दीज कम्स अंडर द कंजेशन कंट्रोल अल्गोरिथम। कंजेशन क्या होता है? आपने आपने अपनी क्लास देखी है, क्लास तो आप लोगों ने सबने देखी है, बिकॉज आप लोग तो कॉलेज में आए हो, ठीक है। तो क्लास में से बाहर निकलने के रास्ते कितने होते हैं? हाँ नादिर, क्लास में से बाहर निकलने के रास्ते कितने होते हैं? रास्ते 2 या 3। दो या तीन? क्या एक ही? दो या दो तीन कैसे? अच्छा, सर, दो डोर्स होते हैं, हाँ 2 डोर्स रहते हैं ना। दो डोर्स होते हैं और दो विंडो रहती है, लेकिन आप विंडो में से जंप नहीं कर सकते हैं, दैट इज द राइट। डिफरेंस। तो आपके पास में दो डोर्स हैं, ओके। अब दो डोर्स में से भी आपका एक डोर क्लोज होता है, वहां पर सारी बेंचेस रखी होती है, या फिर कोई कोई ओपन भी होता है, लेकिन अक्सर तो बंद होता है, और एक डोर आपका ओपन होता है। अब एक डोर में से कितने लोग निकल पाएंगे? एक डोर में से एक टाइम पे कितने लोग निकलेंगे?
ज्यादा से ज्यादा 2 लोग या 3 लोग निकलेंगे अच्छे से अगर निकले हैं। तो वैसे ही अगर कभी 2 3 के बजाय अगर ज्यादा लोग निकलने लगे तो क्या होगा? एक सेकेंड ना। क्या? एक सेकेंड। सॉरी। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, एक डोर में से एक टाइम पे कितने लोग निकल पाएंगे? 2 और 3। ओके। और अगर ज्यादा लोग निकलने की कोशिश करें, 4 या 5 लोग एक साथ में निकलने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? कंजेशन हो कंजेशन। जाएगा। कंजेशन। हाँ, तो ऐसा ही कुछ हमारे नेटवर्क मीडियम्स में होता है, नेटवर्क चैनल्स पर होता है। व्हेन मल्टीपल पैकेट्स, वेरियस पैकेट्स आर ट्राइंग टू ट्रैवल फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन व्हाट हैपन, द कंजेशन अकर्स। ओके। और उसमें फिर उनमें क्या होती है? एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें क्लैशेस हो जाते हैं। कुछ पैकेट बेचारे ऊपर चले जाते हैं, ऊपर मतलब के लॉस हो जाते हैं, और कुछ पैकेट आपके बचते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो हाल होता है, तो वैसे ही आपका किसका होता है? नेटवर्क चैनल्स में होता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कंजेशन बोलते हैं। तो इस कंजेशन से के अंदर हमारे 2 टाइप्स के अल्गोरिथम्स होते हैं। एक होते हैं ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल अल्गोरिथम, और एक होता है क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल अल्गोरिथम। ओपन लूप जो होता है, वो बेचारे सेफ्टी की बात करते हैं। तो बोलेंगे देखो भाई, यू आर ट्रैवलिंग ऑन द हाईवे ना। सॉरी। So you're traveling on the highway now. Okay, so keep moving on your lane only. Okay, don't move here and there. होता है, बहुत लोगों को होता है ना, एक लेन से दूसरी लेन में, दूसरी लेन से तीसरी लेन में, ऐसा ऐसा ऐसा। सब डोंगरी के राइडर्स होते हैं। सो ऐसा नहीं, बल्कि एक लेन में चलना है। अगर यहाँ वहां करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीछे से एक 120 स्पीड वाली कार आएगी और उड़ा के निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ पॉलिसीज हैं। सो दीज नंबर ऑफ पॉलिसीज कम्स अंडर द ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल अल्गोरिथम। के भाई लेन में चलो, 60 की स्पीड में चलो, 120 की स्पीड में जाना नहीं हमको। ओके। और उसके अलावा फिर अगर अगर कभी आपको अगर कभी नींद आ रही है तो थोड़ा रुक के नैप ले लो। ठीक है। और अगर ऐसी कुछ मतलब आपको एकदम सेफ्टी की बात करेंगे, आपका ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन होने से पहले, एक्सीडेंट होने से पहले के सारे आपको पॉलिसीज बताएगा। ठीक है। चलो फिर भी आपको, आपने लेन क्रॉस किए, आपने लेन चेंज किए, ओवरटेक किए, और आपका एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करना है, वो कौन बताएगा आपको? क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल बताएंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंजेशन कंट्रोल आपके इसके अंदर, ये जो इसमें आपका आता है 4th चैप्टर में, नेटवर्क लेयर के अंदर आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ओपन लूप एंड क्लोज लूप दोनों के अंदर उनकी कुछ पॉलिसीज है, वो हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। देन आपका नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके। सो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हमारे पास में हमारे दो बोलते हैं ना, हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ठीक है। एक आदमी है, उसके उसने अपनी ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू किया, 2 ट्रक खरीदा। ठीक है। एक ट्रक का नाम रखा टीसीपी, और दूसरे ट्रक का नाम रखा यूडीपी। ठीक है। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट कंट्रोल सर्विस। ओके, सॉरी, ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड सेकंड इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। आपका जो टीसीपी वाला जो ट्रक है ना, उसका जो ड्राइवर है ना, बहुत अच्छा है, अच्छे से डिलीवरी देगा, अच्छे से सबसे बात करेगा, सब कुछ अच्छा है, तो टीसीपी। एक है ट्रक आपका यूडीपी, इसके अंदर ड्राइवर्स का नाम है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। खड़ूस है वो, अगर डिलीवरी देगा तो आपको बताएगा भी नहीं कि मैंने डिलीवरी दी है। और अगर कभी मतलब कोई पैकेट अगर बीच में रास्ते में कोई अगर माल वाल नीचे गिर गया तो उठाएगा भी नहीं, लेकिन वही काम आपका टीसीपी करता है। ठीक है। तो ये हम लोग विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू ड्राइवर्स। ओके, टीसीपी एंड यूडीपी, दीज आर द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ओके। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। उसके बाद में हमारा 6th चैप्टर, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। लाइक वी हैव different application protocol as a DNS, domain name service,
Then we have HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Then we have SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. आपका मेल इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक कैसे जाता है, कौन कौन एजेंट बीच में काम करते हैं, दैट ऑल वी विल लर्न इन द SMTP. देन वी हैव अ रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल दैट इज टेलनेट. देन उसके बाद में टेनेट नहीं है, टेनेट नहीं है, टेलनेट. उसके बाद में FTP. FTP is a file transfer protocol which is basically used to share your information, your files via local FTP servers and client. And we have last application layer protocol which is DHCP, dynamic host configuration protocol, which is used to assign and which is used to maintain the number of computers, number of IP addresses in the network. DHCP यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. डायनामिकली होस्ट मतलब आपके जो होस्ट है, आपके जो आईपीज हैं, वापस डिस्कनेक्ट हुआ है. वन लास्ट टाइम. हाँ हाँ. जस्ट वेट. हाँ, यहाँ मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हाँ सर. हाँ, यहाँ पर आवाज आ रही है. यस सर. ओके. एकदम यूनिक स्टाइल है. देख रहा का स्टाइल एकदम यूनिक. अभी आ रहा है शायद. ओके, तो ये हम लोग का, मैं एकदम लास्ट टॉपिक पे था, मैं जस्ट खाली रीड करके बता देता हूँ. हाँ, तो DHCP हम लोग का लास्ट प्रोटोकॉल था. तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स है जो कि लास्ट चैप्टर में है, दैट इज इन द चैप्टर नंबर 6. ओके, तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स इनको बोला जाता है. ओके, जहाँ तक बात है आपके बुक्स की, सो मैं तो रेफर करता हूँ, आपका एक बुक है जिसका नाम है, इसमें है BA4000, बहरोस A4000. ठीक है, सो ये बुक मैं रेफर करता हूँ, आप लोगों को भी मैं बता दूंगा बुक कौन सी है. और उसका जो टाइटल है वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग. मेरे पास में बुक है, मैं अपलोड कर भी दूंगा आप लोग को. तो लोग को मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा. यहाँ पर अभी तो कोई स्क्रीन शेयरिंग भी नहीं हो रही है एक्चुअली. क्लिक कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही है. तो ठीक है, मैं सबसे ज्यादा रेफर वही करता हूँ, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जिसके ऑथर है BA4000, बहरोस A4000. ठीक है, तो उनकी और एक बुक है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट. ठीक है, वो भी BA4000 की है. उसके बाद में टेनेनबम करके एक बुक है आपका, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स या ऐसे कुछ नेटवर्क कॉन्सेप्ट करके बुक है, आपको मैं बताता हूँ. कंप्यूटर नेटवर्क्स फोर्थ एडिशन, AS टेनेनबम. तो ये एक बुक है. BA4000 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ये एक बुक है. लेट मी शेयर द स्क्रीन, अगर होती है तो लोग को एक बार दिखा दूं. स्क्रीन शेयर कर चुका हूं मैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं. तो बहरहाल और एक और थर्ड बुक टेक्स्ट बुक्स में दिया है जो कि है जेम्स F क्रूस, केट W रॉस कंप्यूटर नेटवर्किंग करके. आई थिंक वापस से गए हैं. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का रहेगा, छोड़ो उसको, जाने दो अभी. वो आई थिंक प्रॉब्लम कुछ ज्यादा दे रहा है. अच्छा अच्छा, हुई ना, अभी 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 हुई है. आप लोग का असेसमेंट 20 मार्क्स का है, UT1 UT2.
अगर वो भी ऑनलाइन रहा तो आप लोग को पैटर्न पता है, जैसे हम लोग लेते हैं हर बार। आपका 20 मार्क्स के दो इंटरनल एग्जामिनेशन है, दैट इज UT1 UT2, दोनों का एवरेज आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स। और आपका जो 80 मार्क्स है वो आपका ESE है, दैट इज एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, थियरी एग्जामिनेशन जो होता है आप लोग का। और वहां से आपके 80 मार्क्स आएंगे, ये 20 मार्क्स बिकम्स 100 मार्क्स। ओके, एज फार एज योर थियरी इज कंसर्न। और हम्म, चलो ठीक है। उसके अलावा फिर प्रैक्टिकल पार्ट जहाँ पर रहेगा हमारा, वहाँ पर हमारे कुछ गाइडेड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को मैं। कोर्सेरा पर कुछ कुछ ना गाइडेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो गाइडेड प्रोजेक्ट्स आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं आप लोग को। देखो अभी अभी स्क्रीन आई है। ये बुक्स है, जो बुक्स में जिसकी बात कर रहा था मैं, तो टेननबम भी रेफर नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ ये वाली रेफर फॉरोजन वाली करता हूँ। ठीक है, जो आपको नीचे सेकंड नंबर पे दिख रही, ये दोनों बुक और इनकी सारी स्लाइड जो भी है वो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पर, वहां से आप लोग निकाल के रख लेना। ओके, तो यहाँ तक हम लोग रुकते हैं, फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और कल से हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। ओके, होप सो। मैं आजकल में कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मुझे सही कॉन्फ़िगरेशन मिल नहीं रही है लैपटॉप की। सही कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे पता है, बट आई एम कंफ्यूज एक्चुअली। So if someone is having good idea and have some good recommendation also, then do please contact me. Okay, हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं आप लोग, हाँ, जी हाँ बोलिए नादिर। भाई वो बोला ठीक है, अगर आपको अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो बताता हूँ। ओके ओके, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। कंप्यूटर नेटवर्क्स। I've shared the link, please mark your attendance. Okay, total 20, sorry 75, 75 के सारे। ऐसे कैसे कहाँ पर ऐड हो गए वो? नादिर, एक बार चेक करो आपका है क्या नाम, आपका रोल नंबर है नहीं कि नहीं? सर, नाम नहीं है। नहीं आ रहा आपका? नहीं नहीं। मैंने तो ऐड किया यार, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ यहाँ पर ऐड किया हूँ, इसमें ऐड नहीं किया हूँ। और नादिर, हाँ सर। अब चेक करो तुम्हारा नाम हाँ कौन आ गया नंबर आ है। गया। आ गया ना? हाँ, वो एक्चुअली हाँ। अपडेट नहीं होता, इसके लिए अच्छा खाली। ठीक, नो वरी चलो, सर। ओके ठीक है। So everyone mark your attendance and then you can relax for the, I think आपका नेक्स्ट लेक्चर तो है नहीं हुई। ठीक है, so you all can leave. Okay, thanks for the day.
and we'll meet tomorrow with the first chapter. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज. रिकॉर्डिंग जिसके पास भी हो, जिसके पास भी सेव हुई हो, अच्छा रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर दो. राबिया प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग. एंड रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है देखते हैं पहले.